چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا ایک اجلاس بلایا 26 نومبر کا جو اجتماع تھا، اور اس پر جو ان کا ایک عوامی جو ہم نے رد عمل دیکھا لوگوں کا، پاکستان کے دور افتادہ علاقوں سے، پاکستان کے طول و عرض سے، چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سے جو لوگ وہاں کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے، وہ عمران خان سے ایک امید وابستہ کر کے آئے تھے، اور عمران خان صاحب نے انہیں ایک پیغام دے کر وہاں سے رخصت کیا، اور وہ پیغام بڑا واضح تھا۔ وہ پیغام تھا کہ ہمیں اپنی ذات سے، اپنی جماعت سے یہ وطن زیادہ عزیز ہے۔ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کو، پاکستان کے آئین کو یا جمہوری نظام کو نقصان پہنچے، لیکن ہمیں احساس ہے کہ پاکستان کی عوام پر آج کیا گزر رہی ہے اور ان کی خواہش کیا ہے، اور جو لیٹسٹ اوپینین پول سامنے آئے ہیں اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی یہ ایک رائے ہے کہ حل، ملک کے مسائل کا حل نئے انتخابات ہیں، واحد جمہوری آئینی حل نئے انتخابات ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں آئین اور جمہوری راستے کو اپناتے ہوئے جو میرے اختیار میں ہے، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں نے بہت مواقع دیے، اپوزیشن سے بھی بات کی اور کہا، ان کو پیغامات مختلف انداز میں گئے۔ ہمارے صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو فاصلے ہیں وہ کم ہو سکیں اور ہم کسی مثبت راستے پر آگے بڑھ سکیں۔ پیش رفت نہ ہو سکی اور معاملہ جو کا تو رہا۔ اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کے اختیار میں ہے وہ قدم اٹھائیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں مشاورت کے ساتھ بہت جلد خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں جو میرے اختیار میں ہیں میں تحلیل کر دوں گا، تاکہ نئے انتخابات کی ایک فضا جو ہے وہ ہموار کی جا سکے۔ قومی اسمبلی کے ہمارے ممبران جو ہیں، آپ کے علم میں ہے، وہ پہلے ہی اسمبلیوں سے باہر آ چکے ہیں اور حکومت کا یا پارلیمان کا عملی طور پر اب حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تشریف لاتے ہیں لاہور میں، اور انہوں نے 2 اہم اجلاس منعقد کیے۔ ایک اجلاس انہوں نے پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، ممبران صوبائی اسمبلی، ان کو دعوت دی اور ان سے مشاورت کی، اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ان کا نقطہ نظر سنا اور اپنا ذہن بنایا، اور اس کے اگلے دن انہوں نے خیبر پختونخوا کے ممبران صوبائی اسمبلی سے مشاورت کی، تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایک ڈویژن وائز ممبران کی میٹنگز کا آغاز بھی کر رکھا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے وفود کی شکل میں ان سے مل رہے ہیں۔ آج کی میٹنگ میں انہوں نے ہمیں سب کو اعتماد میں لیا اور یہ کہا کہ میں نے جتنی مشاورت کی ہے اور میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں اور میں نے جتنی نوک پلک دیکھی ہے، میں بالکل اپنی رائے پر مزید قائل ہو چکا ہوں کہ واحد حل نئے انتخابات ہیں، اور نئے انتخابات کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا
हमारी संजीदगी का मुजाहरा जो है वो असेंबलियों की तहलील होगी। चुनाचे आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है कि वो असेंबलियों की तहलील खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज़ में करने का इरादा रखते हैं, ताकि जो सारा प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जा सके। और हमारी ख्वाहिश है कि अगर वफाकी हुकूमत PDM की अभी भी वो अपने मफादात को मुल्क की मफादात पर तरजीह देना चाहते हैं और जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते और मुल्क को मज़ीद डबोना चाहते हैं, तो ये उनका फ़ैसला है। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमज़ान से पहले इलेक्शंस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़ वजूद में आ चुकी हों। अब इसको आप सामने रख लें तो आपको ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि असेंबलियों की तहलील में ताख़ीर न की जाए। ये उन्होंने आज अपना जहन जो है अपनी सीनियर लीडरशिप से उन्होंने उसका इजहार कर दिया। दूसरी बात जो उन्होंने की है और सब ने उसकी तायीद की है, और वो है तेज़ी से बिगड़ती हुई हमारी माशी सूरत हाल। सबकी राय थी और असद उमर साहब यहाँ हमारे माहिर भी हैं, मईशत को मुझसे बेहतर समझते हैं। इन सब की राय है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी का, ताजर तबके का एतमाद खो चुके हैं, किसान परेशान है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। जिस लेवल पर, जिस ग्रोथ के फिगर पर हम मईशत को छोड़ के गए थे, वो तनज़्ज़ुली की तरफ तेज़ी से आ रही है। अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को देखें, वो गिरती चली जा रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को, जो कि वो अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बोरोइंग करते हैं, उसको देखें तो वो गिर रही है। यानी कि हर इंडिकेटर जो है वो इशारा कर रहा है कि मईशत बिगड़ती चली जा रही है। IMF के साथ मामलात, डार साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है, बिगड़ चुके हैं और एक खलीज पड़ चुकी है उनकी सोच में, और मौजूदा वज़ीर ख़जाना की सोच में एक खलीज पड़ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की जो एक मज़ाकरा है वो एक खुलेआम, एक खुली किताब की तरह आपके सामने आ चुका है। तीसरी चीज़, पार्टी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि लोगों के जो इस्तराब था और जो पिटिशन्स की शक्ल में मुतालबा था कि चीफ जस्टिस साहब अरशद शरीफ साहब के उनका जो कत्ल हुआ है उसका नोटिस लें और उनके ख़ानदान को इंसाफ मुहैया किया जाए। हमने, पार्टी ने अप्रिशिएट किया है कि चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो एक्शन लिया है और एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। उस बेंच के सामने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स आपके सामने हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और अरशद शरीफ साहब की वालदा का जो नुक्ता नज़र है वो भी सबके सामने आ चुका है और वो इंसाफ की तालिब हैं। हम समझते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। हम समझते हैं कि इंसानी हकूक़ की पामाली जिस अंदाज में होती रही है उसका कोई जवाज़ एक मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं ठहरता और उनको इंसाफ
ملنا چاہیے. اسی طرح آپ نے اعظم سواتی صاحب کا جو پوری رویداد ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اعظم سواتی صاحب پہ شہباز گل پر جو کیسز بنائے گئے اور کس طرح عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی مدعیت میں اپنا پرچہ بھی اور اپنی ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکتے. یہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں جس پر ہماری قوم کو، ہماری سول سوسائٹی کو، ہماری جوڈیشری کو اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ اعتماد کا فقدان بڑھتا چلا گیا وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں، ہماری وفاقی سوچ ہے، ہماری جمہوری سوچ ہے. ہم آئینی کردار کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم ہرگز کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو یا ملک کے کسی ادارے کو نقصان ہو یا کسی ادارے کی تضحیک ہو. ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں اگر پچھلے 7-8 ماہ میں اگر کوئی خلیج پیدا ہوئی ہے، اگر کوئی بدگمانیاں جنم لیا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ کریں کہ وہ خلیج کم ہو سکے، اس میں اضافہ نہ ہو، وہ کم ہو سکے اور ملک جو ہے اس ہیجانی کیفیت سے باہر آ سکے. یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا. صاحب نے ایک مجموعی طور پہ تو خاکہ دے دیا تھا کہ معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس تاریخ کے اندر یہ بھی لکھا جائے گا کہ جب ایک سازش کے تحت رجیم چینج آپریشن کیا گیا پاکستان میں، تو اس کے بعد کس طریقے سے پاکستان کا معاشی قتل کیا گیا. یہ صرف کوئی ایک پہلو نہیں ہے معیشت کا جس کے اندر تباہی آئی ہے، اور ایک بات جو عمومی طور پر کبھی بھی نہیں ہوتی، وہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو 5 پرانے جو آخری وزرائے خزانہ گزرے میں، اس میں جو حفیظ شیخ صاحب تو سیاسی کیونکہ وہ نہیں ہے، وہ سیاست پہ بات نہیں کرتے، باقی چاروں وزرائے خزانہ کی اس وقت اس بات پر اتفاق ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت تباہ و برباد ہو گئی ہے. ڈار صاحب اس تباہی کا الزام جو ہے وہ مفتاح اسماعیل پر ڈالتے ہیں، مفتاح اسماعیل اس تباہی کا الزام جو ہے وہ ڈار صاحب پر ڈالتے ہیں، اور شوکت ترین اور اسد عمر اس تباہی کا الزام جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن پر ڈالتے ہیں، جس کی نتیجے میں یہ امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی. آپ کوئی پہلو دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی مہنگائی نہیں ریکارڈ ہوئی جو مہنگائی اس وقت پاکستان کے عوام نے پچھلے 8 مہینے میں دیکھی ہے. ضروری اشیاء کی جو افراط زر ہوتی ہے، جو آج تک کبھی 26-27% سے اوپر نہیں گئی تھی، وہ 45% تک پہنچی اور مستقل 30% سے زیادہ وہ چل رہی ہے. اس کے بعد اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بے روزگاری کا ایک خطرناک طوفان آنا شروع ہو گیا ہے. پاکستان میں جس شعبے کے اندر سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے لوگوں کو وہ زراعت ہے، اور زراعت اس وقت جس زبوں حالی کا شکار ہے، جس طریقے سے کسان اس وقت مشکل کے اندر ہے، جس طریقے سے پاکستان میں یوریا جو سب سے بڑی کھاد ہے اسی کو اگر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال سے کم ہو گئی ہے اس کی جو کھپت ہے، یعنی کسان خرید نہیں سک رہا، اور اس کے نتیجے میں فصلوں کے اوپر جو اثر آنے والا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. کپاس جو ہے وہ تقریباً اس وقت کوئی 50 سے 60% پچھلے سال سے کم جو ہے وہ پیداوار اس وقت پہنچ رہی ہے ملوں کے اندر، اور سب سے زیادہ پاکستان کی زر مبادلہ کمانے والی فصل بھی یہی ہے. اسی طریقے سے آپ شہر کے اندر اگر آ جائیں تو سب سے زیادہ روزگار جو ہے وہ کنسٹرکشن سے ہوتا ہے. کنسٹرکشن کی انڈسٹری جو ہے اس کا سب سے اچھا جو ایک چیز ہوتی ہے میٹرک ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کنسٹرکشن اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، وہ سیمنٹ کی سیل ہوتی ہے.
सीमेंट की सेल जो है वो 22% कम 23% कम हुई भी है पिछले साल से इस वक्त। पेट्रोलियम की मसनूआत जो हैं वो हर शोबा ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं, वो ज़राअत पर भी, सनत पर भी, तजारत पर भी असरअंदाज होती हैं। 20% इस वक्त कमी हुई है पेट्रोलियम की मसनूआत की खपत के अंदर। इसी तरीके से आप अगर एतमाद देख लें कि बिज़नेस की जो सरमायाकार हैं उनकी क्या सूरत हाल है, तो आज ही रिपोर्ट शाया हुई है कि जो बैरूनी सरमायाकार हैं पाकिस्तान में, उनका ओवरसीज़ चेंबर है, बैरूनी सरमायाकारों का यहाँ पर चेंबर है, तमाम दुनिया की कंपनीज उसका हिस्सा हैं, वो हर 6 माह के बाद सर्वे करते हैं कि बिज़नेस का एतमाद इस वक्त ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आखिरी सर्वे जो उन्होंने किया था आज से 6 महीने पहले, वो उस वक्त हुकूमत उसी वक्त बदली थी, उसी के अंदर फौरी तौर पे भी मनफी थोड़ा सा हुआ था, लेकिन फौरी तौर पे हुकूमत बदलने के बाद था, उस वक्त मस्बत 17% था ये बिज़नेस के एतमाद का स्कोर इस बैरूनी सरमायाकारों की जो सर्वे होता है उसके मुताबिक। आज जो सर्वे शाया हुआ है उसके मुताबिक ये मस्बत 17 से गिर के -4 के ऊपर आ चुका है। जो आप पाकिस्तान के ज़राए मुबादला जो हैं उनको अगर आप देखें तो जिस ख़तरनाक तरीके से उनके अंदर कमी आ रही है, जिस दिन पेश हुई थी अदम एतमाद की तहरीक, ये साजिश के तहरीक तहत लाई हुई अदम एतमाद की तहरीक, वाज़े बैरूनी मुदाखलत जैसे कौमी सलामती कमेटी ने कहा, उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त 16.4 अरब डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, वो 7 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं। और ख़तरा ये है कि जो अगले हफ्ते के अदाद व शुमार आएंगे, क्योंकि 1 अरब डॉलर की सुकूक की अदायगी भी की गई है, तो ये शायद 6 अरब डॉलर से भी नीचे गिर चुके हों। और जो मईशत के जो माहिर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ख़तरा भी मौजूद है कि शायद 5 अरब डॉलर तक ये पहुंच जाएं साल ख़त्म होते होते, यानी दिसंबर के आखिर तक। और ये आपको पता है कि चाइना ने हमारे पास डिपॉजिट रखाए हुए जो हम अपनी ट्रेड के लिए, तजारत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया का भी 3 अरब डॉलर का जो टर्नओवर हुआ है, ये आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप समझ लें कि तकरीबन सूरत हाल वहाँ पर आ गई है जहाँ ज़खायर हमारे तजारत के लिए जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी तजारत के लिए भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि रोज़ाना आप अगर पूछें कारोबारी लोगों से तो सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं, तजारत पे कदगन लगाई जा रही है, एलसियाँ खोल नहीं रही हैं। यहाँ तक ख़तरनाक बात आ गई है कि दवाइयों की, ज़रूरी दवाइयों का खाम माल जो है उसकी एलसीज़ को खोलने के ऊपर भी अब पाबंदी लग रही है। ये मुल्क बिल्कुल तबाही के दाने पे ले आया गया है, माशी इसका कत्ल कर दिया गया है इस मुल्क का। और जो लोग जिम्मेदार हैं इंशाअल्लाह ताला तारीख इनको माफ़ नहीं करेगी। अभी भी अगर जो आगे फैसला करना है उसके अंदर मज़ीद ताख़ीर की गई, पाकिस्तान को इस बहरान से ना निकाला गया, इस इंतशार से ना निकाला गया, पाकिस्तान को जो वाहिद हल है इस इंतशार से निकलने का, जो यहाँ से निकालने के लिए इलेक्शन ना कराया गया, तो जो भी ये फैसला मज़ीद देर कर रहा है वो कौम के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो कौम का मुजरिम है। इसी तरीके से सूबों के साथ क्या कर रहे हैं, इस वक्त पंजाब की हुकूमत को 176 अरब रुपए देने हैं वफाकी हुकूमत ने, वो उनको नहीं दिया जा रहा। 120 अरब रुपए छोटा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है उसका पैसा नहीं दिया जा रहा। जो हमारे जम अजला ट्राइबल एरियाज जहाँ इतनी मुश्किल से इतनी कुर्बानियाँ दे के हमारी फौजी शहीद हुए, कुर्बानियाँ दी और हम इससे निकले हैं दहशतगर्दी से, उनके पैसे जो हैं वो रोक दिए गए हैं। पिछले कई माह से 1 रुपया भी उनके लिए नहीं दिया जा रहा है। यानी पाकिस्तान को हर तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अभी फैसला हुआ है इंशाअल्लाह ताला जुमे के दिन पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत तीनों मिलकर और अलग से फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अलग से, ये चारों हुकूमतें जो हैं ये इस्लामाबाद आके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी और एहतजाज करेंगी कि वफाकी हुकूमत के फैसलों की वजह से एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। और इसीलिए हमारी आगे की जो हिकमत अमली है उसके ऊपर मैं फवाद चौधरी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको बताएं कि आगे हम क्या करें।
सामने आप आ चुके हैं। सबसे पहला जो नुकता था वो ये है कि डिसोल्यूशन, हमारे साथ स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन साहब भी खड़े हैं, मियां असगर साहब भी खड़े हैं, पंजाब की जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है वो भी सारी खड़ी है। हमने इन्हें आज जो हुआ है रेजिग्नेशन, जो आज एक हलफ हुआ है, उसके ऊपर अब डिस्क्लेयर भी जो है वो दिया है कि इस वक्त ये नहीं होना चाहिए था, गलत तासुर जो है वो उससे किया है। लेकिन बहरहाल अब ये मामला जो है वो चल पड़े हैं, जैसा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आपके सामने पूरा रखा कि अगले चंद दिनों में रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आप देख लेंगे। उसके बाद जो अरशद शरीफ साहब का मामला है उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई है, उसमें हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो असल जो सुप्रीम कोर्ट का और इदारों का एक ही काम है वो ये है कि उनकी वालदा को मुतमईन करें, और जो भी कंप्लेंट्स हैं, ये जो नया रवाज शुरू हो गया है कि आपने जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर आप FIR नहीं कर रहे, आप कह रहे नहीं हुकूमत खुद ही कर ले। ये देखिए 150 साल में FIR का कानून ये नहीं है, और ये हम नई कानून यहाँ पे जो है वो शुरू कर दिया है, तो उसके ऊपर डिटेल बात डॉक्टर फजारी ने आपके सामने रख दी है। तीसरा नुक्ता मईशत का, जो डूबती हुई मईशत है और उसके ऊपर चारों हुकूमतें हमारी जाके इस्लामाबाद प्रोटेस्ट कर रही हैं। और जो आखिरी नुक्ता है, देखिए अब इस वक्त मुल्क के हालात क्या है और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिलकर क्या कर रही है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दो। भाई इससे मुल्क में इस्तेकाम आएगा या तुम इस्तेकाम आएगा? जो इस वक्त तमाम फोकस ये हुआ है, जो नवाज शरीफ साहब ऐसे बच्चे की तरह जिद लगा के इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को पहले कहा कि जी 2 बातें हम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। पहली बात यह कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो और किसी जाली केस में भी जेल भेजो। अगर आपने इस तरह से इदारा, ये जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का इदारा हुआ है इस वक्त, आप देखिए कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। इसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि आप हमें इनके पास रोज़ भेज देते हैं, हमारे केसेज हैं इनके खिलाफ पड़े हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस डाला हुआ है, सिंध के मेंबर के ऊपर जो है वो केस जो है वो हमारा पेंडिंग है, और इसके उनका फैसले तो आप करें, उसके बाद ये बैठे, ये रोज़ बैठ के हमारे खिलाफ, ये तो पार्टी बने हुए हैं इस वक्त, और अगर उन्होंने पार्टी बन के फैसले करने हैं तो फिर हमारे केसेस किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। और इमरान खान को अगर डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी डिवाइड है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से शाह साहब ने कहा, पाकिस्तान को जोड़ने की ज़रूरत है, इसमें मज़ीद नफ़रतें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। सारे इलेक्शन, सारे सर्वे, तमाम जो इस वक्त पाकिस्तान की में बता रहे हैं वो इमरान खान को अपनी महराज के ऊपर है मकबूलियत की। हमारे इदारों को और हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अपने पाँव से आगे बढ़ के सोचने की सलाहियत पैदा करें। बंद कमरों के फैसले अवाम नहीं मानते। 66% इस मुल्क की आबादी 28 साल से कम उम्र है, इंटरनेट का उनके पास एक्सेस है। आप अगर इमरान खान को इस तरह से चोर दरवाज़ों से बाहर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में बेपनाह फासले पैदा होंगे। 1970 में भी यही हरकत की गई। आपने सियासत में जो लोग पाकिस्तान के अवाम जिनको अपना लीडर समझते थे, उन फैसलों से इनकार किया गया और हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ा। इमरान खान भी आज पाकिस्तान की सियासत में अवाम के असल लीडर कोई है तो इमरान खान है। ये जो तीनों शक्लें हैं, ये जो इस वक्त हमारे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, इनकी शक्लों को कोई देखना ही नहीं चाहता। एस्टैब्लिशमेंट अगर थोड़ा बहुत होश से काम ले तो ये जो सियासी लाशें जरदारी और नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के उठाए हुए हैं, उससे उनकी कमर तोड़ी हो गई है। ये सियासी लाशों को आप पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत, जो पहले पिछली जो हमारे यहाँ पे जिस तरीके से मुसल्लत किया गया, अवाम ने उसको मुस्तरद किया है। अवाम की फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया जाए, अवाम के फैसलों को माना जाए और पाकिस्तान जो है उसको आगे लेके चला जाए। इंशाल्लाह रिजोल्यूशन जो है वो पंजाब असम्बली की, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की वो होने जा रही है। मईशत के ऊपर हम इसके ऊपर आगे इस मामला को लेके जा रहे हैं, और पाकिस्तान में नए इंतखाबात के बगैर इस्तेहकाम आना नामुमकिन है।